Assalamu alaikum dear students. Today our topic of second year is periodic trends in physical properties, and the first property we are discussing here is atomic size. Atomic size, the first of all, the property we are discussing is atomic radius. It is said that atoms are so small that it is impossible to see an atom a powerful even with a powerful optical microscope. The size of a single atom therefore cannot be measured directly. However, techniques have been developed which can measure the distance between the centers of two bonded atoms. Half of this distance is considered to be the radius of an atom. In the periodic table, the atomic radius increases from top to bottom within the group due to increase in atomic number. This is because the addition of an extra shell in each period. और अगर पीरियड की बात की जाए, however, as the atomic number increases from left to right, atomic radius decreases. This gradual decrease in the atomic radius is due to the increase in the positive charge in the nucleus. न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता चला जाता है और एज अ रिज़ल्ट वो एटम्स को मोर स्ट्रांगली अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, जो साइज़ डिक्रीज़ होता है. तो लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ और टॉप से बॉटम इंक्रीज़ देखने में मिलता है. As the positive nuclear charge increases, the negatively charged electrons in the shells are pulled closer to the nucleus, thus the size of outermost shell becomes gradually smaller. This effect is quite remarkable in the elements of longer periods in which D and F subshells are involved. For example, gradual reduction in the size of lanthanides is significant and are called lanthanide contraction. तो ये सवाल हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ एटम्स इन अ पीरियड और इन लॉन्गर पीरियड्स. नंबर सेकंड हमारे पास आयनिक रेडियस है. आयनिक रेडियस में जो हमने फर्स्ट ईयर में दो क्वेश्चंस पढ़े थे वो हमने यहाँ पे भी डिस्कस करने हैं. नंबर वन इज़ कि साइज़ ऑफ कैटाइन स्मॉलर क्यों होता है और नंबर टू इज़ साइज़ ऑफ एनाइन ग्रेटर क्यों होता है. When a neutral atom loses one or more electrons, it becomes a positive ion. The size of atom is decreased in this process because of the two reasons. पहली reason, first of all, the removal of one or more electrons from the neutral atom results in the loss of outermost shell, and second, the removal of electrons causes an imbalance in electron proton ratio. Due to the greater attraction of the nuclear charge, the remaining electrons of the ion are drawn closer to the nucleus. एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव हो जाने से एक तो आउटर मोस्ट शेल भी ख़त्म हो जाता है और दूसरा आपके पास वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज़ आपके पास डिक्रीज़ हो जाता है. जैसे सोडियम का साइज़ 157 पिकोमीटर होता है, लेकिन सोडियम आयन का साइज़ ओनली 95 पिकोमीटर आपके पास देखने को मिलता है. ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स जो नेगेटिव आयन है वो हमेशा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ पेरेंट एटम. उसकी रीज़न ये है कि एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ द शेल, तो साइज़ इंक्रीज़ होगा. जैसे फ्लोरीन एटम का साइज़ 72 पिकोमीटर है, लेकिन फ्लोराइड आयन का साइज़ 136 पिकोमीटर. और अगर ट्रेंड की बात की जाए तो लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ और टॉप से बॉटम इंक्रीज़ जो है वो देखने में आता है. इन पीरियोडिक टेबल द साइज़ इंक्रीज़ टॉप टू बॉटम, where within a period isoelectronic positive ions show decrease in ionic radius from left to right because of the increasing nuclear charge. The same trend is followed for isoelectronic negatively charged ions of period. Ionic size decreases from left to right. The variation in the atomic and ionic radii of alkali metals and halogens are shown. Likewise, हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये कर्व आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो आपको देखने को नज़र आ रहा है. जैसे ही वो आयंस बने तो उनका जो साइज़ है वो आपके पास
एटम्स की निस्बत कम हो गया तो ये आप कर्व बिल्कुल सेम लेकिन नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। इसी तरह से हेलोजेंस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ये आपके पास एटम्स का कर्व है, लेकिन जैसे ही आइंस बनेंगे तो उनके साइजेस बढ़ जाएंगे तो वो कर्व अपर लेवल पे जो है वो शो किए जाएंगे। तो ग्राफ्स आप लोगों ने ज़रूर बनाने, और ये दो क्वेश्चंस जो है वो लाजमी आप लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है हमसे इसके बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of the isolated gaseous atom। तो लाइक सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 496 एनर्जी दरकार है। मैग्नीशियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 738 और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 451 है। सेम इज़ द ट्रेंड। अगर हम बात करें ट्रेंड की तो ग्रुप में आपके पास डिक्रीज़ देखने में आता है। ये जो आपके पास ग्राफ है ये भी डिक्रीजिंग ट्रेंड डाउनवर्ड शो कर रहा है। और अगर हम लेफ़्ट से राइट पीरियड्स की बात करें तो इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। जैसे सबसे पहले आपके पास पहला पीरियड है, दो ही एलिमेंट होते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम इंक्रीज़। उसके बाद आपके पास लिथियम से लेकर और नियोन तक इंक्रीजिंग ट्रेंड, और सोडियम से लेकर ये आर्गोन तक तीसरा पीरियड, ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। तो पीरियड्स में ये इंक्रीज़ हुआ करते हैं जनरली। रीज़न्स जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट सेम है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी या जो आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस के लिए पढ़ी। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to the gaseous atom to form a negative ion। लाइक फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 337 किलो जूल पर मोल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सेकंड आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑलवेज शोन विद अ पॉजिटिव साइन। तो इसका जवाब जो है वो हम लाजमी देंगे यहाँ पे। कहते हैं एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and electron affinity in such cases is expressed in negative figures in case of halogens। When a second electron is added to a uninegative ion, the incoming electron is repelled by already present negative charge and energy is absorbed in this process। तो सेकंड और थर्ड या जो हायर electron affinities are always positive। वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करती हैं, हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि एनर्जी दिए बगैर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है तो 141 एनर्जी रिलीज़ होगी। एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हैं 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन, तो एनर्जी आपके पास गेन होगी। और अगर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड आपके पास सेम है। लेफ़्ट से राइट आपके पास इंक्रीज़ और टॉप से बॉटम डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। उसके बाद हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर है। मेटेलिक करेक्टर आपके पास मेटल्स का करेक्टर है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, दिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आइंस बना सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो केमिकली ऑल द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड मेटल्स, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो इसका प्रूफ ये है कि जब ये बेसिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलते हैं तो बेसिस बनाते हैं Na2O plus H2O। As it is become easier to remove the electron of an bigger atom, therefore metallic character increases from top to bottom। और लेफ्ट से राइट फिर डिक्रीज होगा। On the contrary, it decreases from left to right across the period। The elements of 7A halogens are the least metallic in nature, जबकि 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सबसे अच्छे मेटेलिक करेक्टर जो है वो शो करते हैं।
इसका बिल्कुल रिवर्स अगर बात की जाए तो वो नॉन मेटेलिक करेक्टर हैं, वो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करके नेगेटिव आइंस बना सकते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं। ये तमाम एटम्स नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि जब भी हम इन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इंक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो आपके पास कहते हैं द मेंबर एट द टॉप फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक element of periodic table. This trend can be verified by the elements of 5a and 6a. Nitrogen and oxygen are pure non-metals, usually exist in gaseous form, while bismuth and polonium, the members at the bottom, are fairly metallic in nature. तो ये आपके पास डिक्रीज़ होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लेफ़्ट से राइट आपके पास ये इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जबकि मेटेलिक करेक्टर में लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ और टॉप से बॉटम आपके पास इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आप लोगों से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर पूछा जा सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि जस्टिफाई दैट Na2O is basic while SO3 is acidic। तो उसका बेहतरीन जवाब ये है कि Na2 वाटर के साथ मिलके बेस बनाता है और SO3 वाटर के साथ मिलके एसिड्स बनाता है। तो ये इसका क्लियर आंसर है। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग वाइंड अप करेंगे अपने टॉपिक को। किसी भी किस्म का सवाल आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।